Hello students. So I welcome you all once again. So student, today we are going to discuss a very important topic of general organic chemistry. This topic is called as resonance energy comparison. Every one of you have an idea that how to compare resonance energy of the different molecule. So actually we will be discussing few more questions based on this and we will see what exactly resonance energy is. ठीक है? तो स्टूडेंट रेजोनेंस एनर्जी कंपैरिजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी. रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है स्टूडेंट्स? How will define resonance energy? How will define resonance energy? So student, resonance energy is defined as the energy difference between the most stable resonating structure and resonance hybrid. What I said, what is resonance energy? Resonance energy किसे कहते हैं student? Resonance energy is the energy difference between most stable resonating structure and resonance hybrid. है ना? अब इस बात को let's try to understand it. इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, है ना? Suppose if we have this structure, तो यहां रेजोनेंस है क्या? देखिए रेजोनेंस है, यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, आप क्या कीजिए, यू ड्रॉ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना? ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. तो स्टूडेंट्स, वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस विल बी व्हाट? इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है वो ये बनने वाला है. क्लियर? और एक बार फिर से रेजोनेंस होगा, एंड दिस प्लस चार्ज विल कम ओवर हियर. अभी स्टूडेंट्स आपको पता होगा ये कैसे कर रहे हैं हम लोग, हाउ वी आर डूइंग दिस. यहां पॉजिटिव चार्ज है, सो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन एटम, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग एरो से दिखाते हैं. सो स्टूडेंट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस एंड फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस. तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हुआ, पॉजिटिव चार्ज विल कम ओवर हियर. क्लियर? And then again we will have this structure. तो if you call this as, अगर आपने इसे A, इसे B और आपने इसे C कहा स्टूडेंट, क्लियर है? If they are A, B, C, so A, B, C are what? They are different resonating structure. They are different resonating structure. Resonating structure को एक और नाम से कहा जाता है, that is called as canonical form. Canonical forms. So we have different canonical form. अच्छा. Now student, actually molecule जो है, actual molecule exists in the form of resonance hybrid. So resonance hybrid will be what? Resonance hybrid will be like this. Delocalized pi electron and delocalized charge, del plus and del plus. So this is resonance hybrid. Clear? अभी actually student, ये जो resonance hybrid है, this is the way molecule exist. तो ये क्या है? क्या ये तीन फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं? नो. रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. हम अज्यूम करते हैं स्टूडेंट कि अगर पॉजिटिव चार्ज पहले यहां आया होगा तो यहां से यहां फ्लो हुआ होगा और यहां से यहां फ्लो होगा. तो ए बी सी ये तीनों के तीनों जो है स्टूडेंट क्या है, वो हाइपोथेटिकल केस है.
and suppose this D is my resonance hybrid. So what is resonance energy? अब स्टूडेंट resonance energy क्या होता है? Resonance energy is, what I said is, most stable resonating structure. In fact, this is energy of most stable resonating structure minus energy of resonance hybrid. अब स्टूडेंट resonance hybrid is more stable, होता है, the most stable, D is most stable form. इन तीनों से A, B, C सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? A, B, C, D. Out of them, D will be most stable क्योंकि ये this is the most stable case. In this case, the positive charge is distributed in all carbon atom, है ना? तो actually molecule exist in this form. So अगर कोई molecule exist कर रहा है, कोई entity, a molecule or you can say any intermediate जो exist कर रहा है, तो we can calculate energy of this, है ना? We can get energy of D. If D is my resonance hybrid, we can get energy of D. Now student, if you see A, B and C, so can we get, चलो मान लेते A, B, C में कोई भी एक is the most stable, है ना? इनमें से कोई भी one of them is most stable. अगर ये मान के चले कि मोस्ट स्टेबल इज आउट ऑफ देम ए बी सी में कोई तो है, मान लेते हैं लेट इट बी बी, है ना? सो क्या होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ ए बी सी में जो भी ज्यादा स्टेबल होगा, अज्यूम करो जैसे ई बी इज द मोस्ट स्टेबल केस, तो स्टूडेंट ई बी माइनस ई डी, है ना? नाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ई डी बिकॉज ई डी एग्जिस्ट करता है, बट ई बी जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हाउ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दैट एनर्जी? क्लियर है? समझ में आया स्टूडेंट व्हाट आई एम सेइंग? रेजोनेंस एनर्जी को आप डिफाइन कैसे करते हैं? थ्योरेटिकली इट इज डिफाइंड एज energy of most stable resonating structure, but if resonating structure doesn't exist, how we are going to calculate energy of a most stable resonating structure? तो अगर स्टूडेंट यही कैलकुलेट नहीं हो सकता है तो रेजोनेंस एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे होगा? गॉट द पॉइंट? समझ में आया स्टूडेंट्स? तो रेजोनेंस एनर्जी जो हम बोल रहे कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, इट इज द energy difference between most stable resonating structure and resonance hybrid. That will give you resonance energy, but the problem is we can get energy of resonance hybrid but we cannot get energy of most stable resonating structure, क्योंकि resonating structures exist ही नहीं करते हैं. क्लियर है? जब तक आप उसके एनर्जी को कंपेयर करते जाओगे तब तक वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा, तो आप उसकी एनर्जी कैसे कन्वर्ट आप कैलकुलेट करोगे? क्लियर? समझ में आया? वी कैन नॉट कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स because resonating structure do not exist. They are hypothetical cases, they are hypothetical thing. They continuously change from one form to another form. You can say it continuously not changes, rather it get distributed. हम ये नहीं कह सकते स्टूडेंट कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आएगा और यहां से यहां आएगा, ऐसा होता नहीं है. एक्चुअली जैसे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, दिस विल एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म. सो वी कैन गेट एनर्जी ऑफ दिस बट वी कैन नॉट गेट एनर्जी ऑफ एबीसी. And if we cannot get energy of ABC, we cannot calculate resonance energy. Is it clear? समझ में आया? तो theoretically जो define होता है वो practically possible हो ऐसा जरूरी नहीं है. Is it clear? Got the idea of resonance energy? तो resonance energy जो है अभी तक हमारे लिए theoretical case है जिसकी energy को हम calculate नहीं कर पा रहे हैं. By definition of resonance energy, you cannot calculate value of resonance energy. क्लियर है? तो क्या रेजोनेंस एनर्जी हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते? आई एम नॉट सेइंग दैट. रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं बट वो प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड होता है. कैसे होता है? अब इस बात को समझने का ट्राई करते हैं. क्लियर है स्टूडेंट? वेरी मच क्लियर विद दिस आइडिया? समझ में आ गया? चलिए
तो अब रेजोनेंस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो स्टूडेंट, रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वी यूज डिफरेंट टेक्निक. वन ऑफ द टेक्निक इज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन. Through heat of hydrogenation, through different process, we can calculate resonance energy. Now चलिए इस बात को समझते हैं, इस बात को समझते हैं. Suppose what I have done, student, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ना? We have cycloalkene. We have cycloalkene. And students, मैंने इसका हाइड्रोजिनेशन किया है. तो what I will get? I will get call this as hexene. This is cycloalkene, but the name is cyclohexene. We have 6 member, है ना? So from there we are getting cyclohexane. Cyclohexane मिल रहा है. Clear? अब ये जो स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि आप वीक बॉन्ड तोड़ रहे हैं और स्ट्रांग बॉन्ड बना रहे हैं ना. वन पाई बॉन्ड इज ब्रोकन, वन पाई बॉन्ड एंड वन सिग्मा बॉन्ड. वन सिग्मा बॉन्ड किसके स्टूडेंट? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का भी बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेगा अलोंग विथ दिस पाई बॉन्ड. और आप यहां दो नए बॉन्ड बना रहे हैं और दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड है. क्लियर है? सो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना. जितनी एनर्जी आपको लग रही है बॉन्ड तोड़ने के लिए, उससे ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही है. तो एनर्जी अगर ज्यादा बाहर निकल रही है, दोस प्रोसेस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना. सो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एनर्जी बाहर निकल रही है. अभी इसी को स्टूडेंट्स अगर हम लोग ग्राफिकली दिखाएं, है ना. सो दिस इज एनर्जी, है ना. अभी ये डेटा दिखा रहे हैं हम लोग फॉर HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं. तो स्टूडेंट, दिस वाज फाउंड टू बी कि जब साइक्लोहेक्सीन का हमने, सपोज दिस इज द एनर्जी ऑफ साइक्लोहेक्सीन. साइक्लोहेक्सीन का जब हमने हाइड्रोजिनेशन कराया, तो स्टूडेंट यहां पर जो एनर्जी निकला था डेल्टा H, जो एनर्जी बाहर निकला था, दैट वाज फाउंड टू बी अराउंड -120 किलो जूल पर मोल. क्लियर है? इट वॉज फाउंड टू बी 120 किलो जूल पर मोल. नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैंने साइक्लोहेक्सीन के जगह मैंने 1,3 हेक्साडाइईन लिया है, अभी दो डबल बॉन्ड को तोड़ने हैं, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टेक 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इसका हाइड्रोजिनेशन विल गिव यू अगेन साइक्लोहेक्सेन. अभी स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस डेटा आप क्या कर रहे हो? एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हो और 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो, तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो 120 किलो जूल पर मोल निकल रहा है. अगर आप यहां देखेंगे तो एग्जैक्टली हर प्रोसेस को हम 2 बार कर रहे हैं. 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड वी आर फॉर्मिंग 4 सिग्मा बॉन्ड. तो एग्जैक्टली डबल है स्टूडेंट. तो इस केस में डेल्टा H मस्ट बी -240 किलो जूल पर मोल होना चाहिए. इज इट क्लियर? तो एनर्जी जो यहां पर HOH निकलना चाहिए स्टूडेंट, वो कितना निकलना चाहिए? वो निकलना चाहिए 240 किलो जूल पर मोल. डेल्टा H मस्ट बी -240 किलो जूल पर मोल. एंड एग्जैक्टली इट वॉज फाउंड. ऐसा ही मिला हमें. क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हो गई? तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से आप क्या कर रहे हो? आप एनर्जी, जो प्रोसेस में जो एनर्जी बाहर निकल रही है, आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो. और आपने देखा कि साइक्लोहेक्सीन में जितना एनर्जी निकल रहा है, एग्जैक्टली उसका डबल एनर्जी निकल रहा है जब आप 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन का हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हो. क्लियर है? नाउ स्टूडेंट, अब क्या किया गया? व्हेन द सेम दिस प्रोसेस वाज टेकन विथ, अब स्टूडेंट जब इसको हमने
oh sorry, that was 1 3 नहीं, that was 1 4 है ना. This is what? This is 1 4. So this is 1 2 3 4 and 5 and 6. So जब आपने 1 4 साइक्लोहेक्साडाइन का हाइड्रोजनेशन कराया तो आपको क्या मिला? 240 किलोजूल पर मोल मिला. क्लियर है? अब 1 4 के जगह व्हाट वी आर टेकिंग? वी आर टेकिंग 1 3 साइक्लोहेक्साडाइन. तो लॉजिकली स्टूडेंट अभी भी वी आर गोइंग टू ब्रेक 2 पाई 2 सिग्मा एंड वी आर गोइंग टू फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड. तो डेल्टा एच लॉजिकली कितना होना चाहिए था? 240. बट एक्चुअली इट वाज फाउंड टू बी -232 किलोजूल पर मोल. तो ये जो एनर्जी बाहर जो निकल रही है, जो एचओएच से जो आपको एनर्जी मिल रही है वो कम मिल रही है. ये एनर्जी जो है वो 240 किलोजूल पर मोल से कम है. 232 किलोजूल पर मोल है, मतलब 8 किलोजूल पर मोल एनर्जी कहीं तो लॉस्ट हो गया. क्लियर है? वो एनर्जी आपको नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, आपको वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है. क्लियर है? तो लॉजिकली ये पाया गया कि 1 4 के जगह जब 1 3 साइक्लोहेक्साडाइन किया गया तो दिस एनर्जी वाज फाउंड टू बी लिटिल लेस. ये एनर्जी स्टूडेंट्स डेल्टा एच वाज फाउंड टू बी -232 किलोजूल पर मोल, है ना. तो डेफिनेटली यहां पर देयर इज अ डिफरेंस. अब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी स्टूडेंट, तो ये इन दोनों का जब आप हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रहा है दैट इज डिफरेंट. तो इसका मतलब कैन वी से एग्जैक्टली देखो सारा प्रोसेस सेम है. एनर्जी अगर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है तो कैन वी से दे हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना. सब कुछ सेम है. द ओनली डिफरेंस इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड. तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज होने के कारण यहां पर स्टूडेंट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेजोनेंस. हियर रेजोनेंस इज नॉट प्रेजेंट, है ना. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल? अब देखो स्टूडेंट, यहां पर साइंटिस्ट ने सोचना स्टार्ट किया कि जब आप 1 4 साइक्लोहेक्साडाइन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं यू गेट 240 किलोजूल, जो कि 120 का डबल है, और डेटा के अनुसार दिस इज एग्जैक्टली मैचिंग. लेकिन आप जब 1 3 साइक्लोहेक्साडाइन का आप हाइड्रोजनेशन करवाते हैं यू आर गेटिंग 8 किलोजूल पर मोल लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो इसका कारण क्या है? ये जब सोचा गया तब इसका जवाब मिला रेजोनेंस एनर्जी. तो उन्होंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 4 एंड 1 3? बोला 1 4 में नो रेजोनेंस, we don't have any resonance in this case. जबकि स्टूडेंट 1 3 में what we have? 1 3 में we have resonance. तो हमें एक बात समझ में आ रही है स्टूडेंट कि रेजोनेंस होने से इसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई होगी, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो अगर इसकी एनर्जी कम रही होगी तभी तो एनर्जी जो बाहर निकल रहा है वो भी कम होगा. क्लियर हुआ? तो रेजोनेंस होने के कारण एक एनर्जी ऑलरेडी बाहर निकल चुकी है. क्लियर है? समझ रहे हैं ये बात को? ये बात समझ गए सब लोग कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है? तो ये जो एनर्जी, ये प्रोसेस होने के कारण एक एनर्जी का लॉस हुआ है, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी, है ना. तो वो जब एनर्जी रेजोनेंस होता है और एनर्जी बाहर निकलती है तो वो स्टेबिलिटी लेके आता है. तो रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी लेके आ रहा है. नाउ स्टूडेंट, जब ये स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, आप समझो ये जब रेजोनेंस में है तो स्टेबिलिटी लेके आ रहा है. तो अगर आपको तोड़ना है तो डेफिनेटली यू हैव टू सप्लाई अ लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी. जितनी एनर्जी आपको ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड तोड़ने में लगेगी, उससे ज्यादा एनर्जी आपको ये दोनों पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए लग जाएगा. तो 240 अगर निकल भी रहा था तो इनको तोड़ने के लिए 8 किलोजूल पर मोल एनर्जी इज यूज्ड अप, और इसलिए वो आपको बाहर नहीं दिख रहा है. तो स्टूडेंट, ये 8 किलोजूल पर मोल जो एनर्जी यूज्ड अप हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि रेजोनेंस होते समय दैट एनर्जी वाज रिलीज्ड. तो उसको तोड़ने के लिए आपको फिर से उस सिस्टम को अलग करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है. क्लियर? सो दिस इज रेजोनेंस एनर्जी इन द केस ऑफ 1 3 साइक्लोहेक्साडाइन. नाउ स्टूडेंट, जब इन्होंने बेंजीन के साथ देखा, जब इन्होंने बेंजीन का हाइड्रोजनेशन किया तो दे फाउंड डेल्टा एच
to be much lower than what was expected. तो स्टूडेंट फ्रॉम दिस डेटा अगर आप बेंजीन को देखेंगे तो इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी -120 इंटू 3 -360 किलो जूल पर मोल एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए थी. कितना? -360. But actually it was found that energy which is released is minus just 208 किलोजूल पर मोल. तो ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो डिफरेंस दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? ड्यू टू रेजोनेंस. एंड यहां पर एरोमेटिसिटी इज द फैक्टर. क्लियर है? तो स्टूडेंट हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम लोग कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं. क्लियर है? मैथमेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों को. मैथमेटिकली इसकी एनर्जी आनी चाहिए थी कितनी? मैथमेटिकली इसकी एनर्जी आनी चाहिए थी 360 किलोजूल पर मोल. बट एग्जैक्टली ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है? -208 किलोजूल पर मोल. तो एक जो बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है? वो जो डिफरेंस आ रहा है वो रेजोनेंस के कारण आ रहा है. एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी. सो दिस इज प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग रेजोनेंस एनर्जी. क्लियर? समझ में आ गया? theoretically what they said, theoretically they said the resonance energy is the energy difference between most stable resonating structure and resonance hybrid. And what was the problem? We can get the energy of resonance hybrid, but we cannot get the energy of most stable resonating structure, because resonating structure itself is a hypothetical case. Clear? तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं. आइडिया मिल गया स्टूडेंट? रेजोनेंस एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे होता है. अब याद रखना, ये आपको कभी पूछा नहीं जाएगा कि रेजोनेंस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं. आपसे क्या पूछा जाएगा? दे विल आस्क यू टू कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल. क्लियर? सो नाउ वी आर मूविंग टू कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. So we will take few question. Okay. Now student, before taking few questions, just मैं आपको कुछ facts या कुछ important points लिखवा देता हूं जो आपको help करेगा to compare resonating structure. This will help you to compare resonating structures. So few points to be considered while comparing resonance energy. So what are those few points? सबसे पहले स्टूडेंट, रेजोनेंस एनर्जी की जो ऑर्डर होगी, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज रेजोनेंस एनर्जी की जो ऑर्डर होती है स्टूडेंट, सबसे पहला होता है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है एरोमेटिक सिस्टम में. उसके बाद स्टूडेंट, एरोमेटिक सिस्टम के बाद आपको रेजोनेंस देखना होता है ना. रेजोनेंस के बाद स्टूडेंट्स आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, देन आपको इंडक्टिव, और लास्ट में आपको एंटी एरोमेटिक केस देखना पड़ता है ना. जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जब आप रेजोनेंस एनर्जी कभी कंपेयर करो तो आप ये देखो कि अगर कोई सिस्टम एरोमेटिक है तो उस केस में रेजोनेंस एनर्जी बहुत हाई होगी. क्लियर है? उसके बाद जैसे एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस.
suppose we have this as A, है ना, this as A, then we have this as B, then student, suppose if we have this as C, this as D, and they are saying to compare resonance energy. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखेंगे रेजोनेंस, यहां पर जो अनस्टेबिलिटी का कारण है वो पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है। तो स्टूडेंट यहां पर इन दिस ए इज एरोमेटिक कंपाउंड है ना, तो इस केस में जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। स्टूडेंट दिस इज सिंपल लीनियर सिस्टम, क्लियर है। अभी स्टूडेंट इसको हम लोग एक्सटेंडेड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, एक्सटेंडेड सिस्टम, व्हाट दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड सिस्टम और लीनियर सिस्टम, जहां पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज all come in what? All come in a straight line, extended system. अभी स्टूडेंट यहां पर we have this part will come in resonance, but here this will not come in resonance. Clear है? So resonance, but extent is less. And now ऑल्सो ओवर हियर स्टूडेंट, यहां पर भी रेजोनेंस है हमारे पास, रेजोनेंस यहां से यहां तक है ना, एंड दिस इज साइक्लिक सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे, अब देखो आपको पहला तो एक एरोमेटिक मिला है और 3 रेजोनेंस मिला है, तो एरोमेटिक एक ही रेजोनेंस एनर्जी, सो ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, सबसे पहले ये याद रखिए, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी is A greater than B comma C comma D. अब स्टूडेंट B C D में if you see the extent of resonance over here and the extent of resonance over here is same, isn't it? But दूसरा पॉइंट याद रखिए, साइक्लिक, लीनियर एंड क्रॉस। तो स्टूडेंट एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बी और डी में सी से ज्यादा है, तो डेफिनेटली बी एंड डी विल बी मोर देन सी। अब आउट ऑफ बी एंड डी इफ वी हैव साइक्लिक सिस्टम, डी मस्ट बी बिफोर बी एंड एट लास्ट व्हाट वी हैव सी। इज इट क्लियर? तो चलिए थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बेस्ड ऑन दिस आपको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। करे स्टूडेंट सॉल्व कुछ और क्वेश्चंस? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग फ्यू मोर क्वेश्चन, ठीक है। कंपेयर resonance energy, compare resonance energy, and you have this
this, this one, and this one. Suppose this is A, B, C, D, and E. Solve it. Second is HC double bond OO minus. This is A, and we have CH2 minus C double bond OOH. This is B. Third question is ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट टू क्वेश्चंस, देन वी विल गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स यहां पर फिर से क्या देखेंगे, सबसे पहले आप इसको देखो, दिस इज एरोमेटिक है ना. पॉजिटिव चार्ज इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम. देखो एरोमेटिक एंड पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम इज अ डिफरेंट. व्हेन पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक बट द पॉजिटिव चार्ज इज नॉट द पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम. तो वैसे केस में इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो कम होगी और रेजोनेंस एनर्जी भी कम होगा. बट इस केस में पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी काफी हाई होने वाली है. अब ये स्टूडेंट हो जाएगा एंटी एरोमेटिक है ना. अब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में स्टूडेंट्स हमने काफी बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं. सो अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रेफर टू दैट. दिस इज व्हाट, दिस इज रेजोनेंस. आप बोलेंगे सर ये एरोमेटिक है तो इसको क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट द पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग, बट ये दिस विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. पॉजिटिव विल कम ओवर हियर, देन ओवर हियर, देन ओवर हियर, एंड फाइनली इट विल रीच ओवर हियर, isn't it? अब यहां पर भी स्टूडेंट रेजोनेंस है, बट द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज लेस एज कंपेयर्ड टू सी. और ये स्टूडेंट अगेन एंटी एरोमेटिक है ना, इट इज अगेन एंटी एरोमेटिक. क्लियर है? सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर. तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या होगा, ए. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए. तो रेजोनेंस एनर्जी भी ए की सबसे ज्यादा होगी. उसके बाद आउट ऑफ एरोमेटिक के बाद रेजोनेंस, रेजोनेंस सी में भी है, डी में भी है. ज्यादा रेजोनेंस किस में है, सी में है. सो सी विल हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी एज कंपेयर टू डी. नाउ स्टूडेंट्स ए और बी और ई की बात की जाए, दोनों के दोनों एंटी एरोमेटिक है, विच हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी. तो स्टूडेंट यहां पर वी हैव व्हाट, इन दिस केस वी हैव एंगल स्ट्रेन आल्सो. सो ई हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी देन बी. सो दिस इज द केस. Clear students? Is it clear? Okay, now for the second case. तो स्टूडेंट यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे जब रेजोनेंस हो रहा है, so one of the resonating structure will be this and another will be this. But यहां पर जो स्टूडेंट रेजोनेंस हो रहा है, in this case what you will get, O minus and OH. So what do you think, which one have more resonance energy? स्टूडेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीजन में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, so the extent of resonance will be very easy. आप समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. मेरे पास एक कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है और एक ऑक्सीजन जुड़ा है. नाउ ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर कर दे, इसकी जो टेंडेंसी होगी वो बहुत हाई होगी. और इस केस में स्टूडेंट कार्बन जो है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा वो भी ऑक्सीजन पे आ जाएगा, है ना. तो दोनों ही के केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हो रहा है, बट स्टूडेंट यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, -1/2 एंड -1/2. बट द सेम केस विल नॉट बी हियर. यहां पर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू CH2. क्लियर है स्टूडेंट? CH2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां होगी, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह पे ज्यादा लोकलाइज्ड है, ऑक्सीजन पे ज्यादा लोकलाइज्ड है. सो ऐसे केस में रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट? Resonance energy is what?
resonance energy is A greater than B. Clear? Is it clear? Resonance energy is A greater than B. ठीक है? Okay. Now, a very very important point. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करवाने वाला हूं, वो आप ध्यान से समझिए. स्टूडेंट्स, जब कभी यू हैव, सपोज इफ यू हैव, they are asking you to compare resonance energy, compare resonance energy, एंड आपको क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? आपको दिया गया है यहां दो बेंजीन रिंग है, isn't it? We have two fused benzene ring and here we have two separated benzene ring. So they want you to compare resonance energy in A and B. तो स्टूडेंट्स यहां पर resonance energy is, resonance energy जो होने वाला है स्टूडेंट, B will be greater than A. आप बोलेंगे how so? तो note a very important point over here. Student, a very important point here. Independent benzene ring have more resonance energy. Independent benzene ring have more resonance energy. तो स्टूडेंट आपको कैसे चेक करना है आप समझो. आपको पूरा एक इंडिपेंडेंट रिंग देखना है. तो आप देखो ये एक इंडिपेंडेंट रिंग दिख रहा है. अब इसके इलेक्ट्रॉन इज द पार्ट ऑफ दिस रिंग. तो नाउ यू डोंट काउंट दिस इलेक्ट्रॉन एज द पार्ट ऑफ दिस रिंग. तो आपको ये इंडिपेंडेंट रिंग नहीं दिख रहा है. तो हाउ मेनी एग्जैक्ट रिंग यू आर एबल टू सी? जस्ट वन. और यहां पर आपको कितने रिंग्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स? टू. सो किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? बी इज मोर देन ए. क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? थोड़े और क्वेश्चंस करें. इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी मिल जाएंगे. सो लेट्स सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, है ना. थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज चलिए आपको एक और क्वेश्चन देता हूं. Suppose we have A, B, C, D and E and you have to compare resonance energy. आपको resonance energy compare करना है स्टूडेंट्स. So how you will compare? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, इंडिपेंडेंट बेंजीन रिंग हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी. तो ये कब देखना है? when you have same number of ring. अब स्टूडेंट अगर इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ रिंग्स, डेफिनेटली मोर नंबर ऑफ रिंग्स, बेंजोनाइट फॉर्म में रिंग होगा, बेंजीन जैसे रिंग्स बहुत सारे होंगे, तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी. तो ये तो क्लियर है
3 वाले में स्टूडेंट्स, 3 वाले में विल बी हैविंग मोर देन, तो C एंड D विल हैव मोर देन B एंड E, and B and E will more have resonance energy as compared to A. जितना ज्यादा जितना ज्यादा रिंग्स होंगे उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। अब आउट ऑफ सी एंड डी स्टूडेंट्स कैसे कंपेयर करना ये समझो, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाउ टू कंपेयर बिटवीन सी एंड डी? तो स्टूडेंट सी और डी में अगर आप देखो तो यहां पर यू विल फाइंड वन रिंग, वन इंटैक्ट रिंग, केवल आपको एक ही इंटैक्ट रिंग मिलेगा। अब बोले सर नहीं हम इसको दो कर सकते हैं क्या? कांट वी डू लाइक दिस? हम इसको ऐसा नहीं कर सकते क्या सर? अगर हमने इसको ऐसे कर दिया, अगर ऐसे कर दिया तो एक डॉट यहां और एक डॉट यहां, तो दो रिंग दिख रहा है, तो आप ऐसे डॉट डॉट नहीं करा सकते। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव व्हाट? मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या? समझ रहे स्टूडेंट्स? तो आपके पास जो रिंग है वो ये है। आपने बोला चलो मैं इसको 3 रिंग्स कर देता हूं, इसमें भी मैं 3 बॉन्ड बना देता हूं, तो आपके पास एक डॉट यहां एक डॉट यहां, सो दिस इज इनवैलिड। आप कुछ करके यू विल गेट जस्ट ओनली वन इंटैक्ट रिंग। अब यहां पर स्टूडेंट्स हाउ मच इंटैक्ट रिंग यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग 2 इंटैक्ट रिंग। तो आउट ऑफ सी एंड डी विच वन विल हैव मोर एनर्जी? D will have more resonance energy compared to C. Out of D and E student, again same thing, one intact ring, and over here we have 2 intact ring. So E will have more than B and at last A. Clear? Clear हुआ student? Is it clear? तो जब कभी आपको एक से ज्यादा रिंग और फ्यूज्ड रिंग और इंडिपेंडेंट रिंग मिले तो याद रखना इंडिपेंडेंट बेंजीन रिंग हैविंग मोर रेजोनेंस एनर्जी एज कंपेयर टू फ्यूज्ड रिंग व्हेन दे हैव सेम नंबर ऑफ रिंग्स। If number of rings are different, then definitely those compound which have more number of benzene ring will be more stable. Clear? चलिए, now let's solve few more question based on this. Let's solve few more question based on this. So चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज and suppose if we have this, suppose this is A, this is B, so can you tell me which one is more stable? तो यहां पर इंटैक्ट रिंग कितने दिख रहे हैं स्टूडेंट? यहां पर इंटैक्ट रिंग आपको कितने मिल रहे? देयर इज ओनली वन इंटैक्ट रिंग। सो स्टूडेंट यहां अगर डबल बॉन्ड कर दिया जाए, इसको भी डबल और इसको भी डबल, तो यहां अगेन यू विल गेट डॉट एंड डॉट विच इज नॉट पॉसिबल। और यहां पर कितने इंटैक्ट रिंग मिल रहे हैं स्टूडेंट? वन, एंड वी आर गेटिंग टू इंटैक्ट रिंग, सो बी विल बी मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू ए। चलिए लेट्स सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस। Let's solve few more questions. अब मिक्स क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट। यहां पर वी हैव प्लस एंड देन वी हैव
plus, if this is A, this is B. Call this as 1, question number 1. Question number 2 is this is A, this is B. I'm giving you few questions. You solve it. You tell me the answer. क्या होना चाहिए resonance energy का order? Clear है? Question number 3 is A, B, and C. Question number 4 is A and B. Question number 5 is this is A, this is B. Question number 6 is this is A, this is B. ओके 6 क्वेश्चन से पहले इसको डिस्कस करते हैं. अच्छा एक और क्वेश्चन दे देता हूं इस जगह पे. Question number 7 is A and B. Question number 8 is oxygen and sulfur or oxygen. We have sulfur and sulfur. This is A, this is B. So now student compare stability of these molecules. Resonance energy of these molecules. So student A or B में which one is more stable? Which one is more stable in A and B? So student this is anti-aromatic. Anti-aromatic. And here we have
रेजोनेंस है ना। तो एवरी टाइम यू कैन नॉट अप्लाई कि साइक्लिक इज मोर देन लीनियर, तो यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर इज बी ग्रेटर देन ए। क्लियर है? इज इट क्लियर? सो इन दिस केस बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, नाउ सेकंड केस स्टूडेंट्स, सेकंड केस अगेन यहां पर रेजोनेंस है, हियर वी डोंट हैव रेजोनेंस, so b greater than a. In this case students, here you have resonance, here you have resonance in this part and here you have resonance in this part, और यहां पर resonance नहीं है, तो a have more resonance, तो a greater than c greater than b. Clear? In this again, तो student if you see this is resonance and this is resonance, और यहां पर we have resonance in extended or linear system, so b greater than a, so linear is more, linear have more resonance energy as compared to cross. Okay, here b is greater than a क्योंकि student extent of resonance is very very high compared to this. In this case if you see we have two rings, है ना, and here if you see one ring and one ring is not complete, so what do you think, this is more stable than this? Wrong. This part is anti-aromatic and over here b will be more stable than a. Remember it, here we have two rings but still this is very very unstable due to this middle ring which become anti-aromatic. Clear? Iski stability will be very less. This case a greater than b, one ring, and here we have anti-aromatic ring, है ना? This is anti-aromatic. Okay, now in the case of question number 8, please tell me which one is more stable. Which one is more stable, students? The student A is more stable than B. A have more resonance energy than B. Now you will say why? Because student, because of this very huge size of sulfur, this ring will become very unstable. It will not be able to supply electron easily. है ना? This system will become highly unstable. Remember it. In this, okay, so we have done. Now let's solve few more question based on this. Clear hai? Everyone is clear with this idea? Anyway, we have done a lot of problem before that. I'm just adding few more question for your understanding. Okay? Chaliye, let's have few more question based on resonance energy comparison. So the next question is, this is A, this is A, this is B, and this is C. Similarly,
So this is A, this is B. Next one is this is A, this is B. So a lot of question we have done. So student, just tell me the answer of these questions. Let's just compare resonance stability of these 5 questions, then we will end. So student, what is resonance energy of A, B, C? So in this case, A is equal to B is equal to C. Student, distance of A and B and this lone pair is not going to affect anyway because they are not participating in resonance. In this case, student, this is one intact ring, this is second intact ring. We have two intact ring. And over here, if you'll see, you will get just one intact ring, not more than that. So A is more stable than B. Similarly, students, in this case, you will get one intact ring, you will get two intact ring, and you will get three intact ring. Over here, you will get one intact ring, and you will get two intact ring. So A is greater than B. Clear, students? यहाँ पर A is greater than B because student यहाँ पर negative charge will supply electron more powerfully as compared to phenols. And in this case, if this is A, this is B, B is have more resonance energy as compared to A because they will support this resonance of electron on O minus. Clear, student? So we have done a lot of problem based on resonance energy. So thank you very much. Please go through this topic and solve all the questions that I have taken. Thank you very much.